हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में एक नया प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस टेस्ट ईएसआईसी स्टाफ नर्स 2019 का ओरिजिनल पेपर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हेल्थ मेंटेनेंस प्रोग्राम फॉर ओल्डर पीपल इन कम्युनिटी आर एस फॉलोड एक्सेप्ट डाइटरी गाइडेंस एंड फूड सर्विसेज, पैलिएटिव केयर, हेल्थ एजुकेशन, होम हेल्थ सर्विसेज। Correct answer is option second, palliative care. Next question. False labor manifestation are as follows except contraction lessen with activity or rest, cervix progressively if fast and dilated, abdominal discomfort, contractions irregular. Correct answer is option second, cervix progressively if fast and dilated. Next question. The key dietary advice given for patients with gastroesophageal reflux disease is high fiber diet with lot of fluids, to take high carbohydrate diet, to avoid protein and calcium, to avoid caffeine, tobacco, beer, milk and carbonated beverage. Correct answer is option 4, to avoid caffeine, tobacco, beer, milk and carbonated beverages. तो ये डाइटरी एडवाइस होती है जो इन पेशेंट को दी जाती है जिनको GERD की प्रॉब्लम हो। GERD मीन्स गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। तो इस प्रकार का जो फूड है वो नहीं लेना, इस प्रकार की डाइट नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्रेशन ऑफ फेशियल नर्व इन द टेम्पोरल बोन विल लीड टू गुलियन-बर्रे सिंड्रोम, मेनिंजोसील, बेल्स पैल्सी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, बेल्स पैल्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Considering the chain of infection, a reservoir might be a tick carrying Lyme disease, Staphylococcus bacteria, a contaminated water supply, and uninfected patient. Correct answer is option 3, a contaminated water supply. Next question. The level of care which is considered towards the promotion and maintenance of health, the prevention of community disease, the management of common episodic disease, and the monitoring of stable chronic conditions. Tertiary care level, secondary care level, advanced care level, primary care level. Correct answer is option 4, primary care level. Next question. Standard precaution requires the use of protective eye wear when caring for a patient with cough. When a wound is oozing blood, there is a danger of body fluid splashing. Invasive procedure are performed. Correct answer is option 3, there is a danger of body splashing fluid. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन इज गुड लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन, अर्ली डिटेक्शन डायग्नोसिस ऑफ डिजीज एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, सेफ वाटर सप्लाई, वेक्टर एंड एनिमल रिजर्वायर कंट्रोल, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, अर्ली डिटेक्शन डायग्नोसिस ऑफ डिजीज एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। नेक्स्ट, इन एरेक्शंस थ्योरी एडोलेसेंट डेवलप ए सेंस ऑफ इंटेलेक्ट, इनिशिएटिव, इंडस्ट्री, आइडेंटिटी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, identity. Next question. Repetitive, uncontrollable thoughts and acts, rituals, rigidity, inflexibility is termed as obsessive compulsive disorder, जिसको बोलते हैं OCD. Obsessive compulsive disorder means OCD. Ritualistic behavior, phobias, apprehension. Correct answer is option 1, obsessive compulsive disorder. Next question. The bacteria that retain the stain in Gram's method of staining is a spores of bacteria, gram positive bacteria, gram negative bacteria, broad spectrum bacteria. यहाँ पर ये बताना है आपको कि ग्राम स्टेनिंग में जो बैक्टीरिया कलरफुल हो जाता है या स्टेनिंग को ले लेता है उसको ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं, और जो बैक्टीरिया ग्राम स्टेनिंग में कलर नहीं लेता है या स्टेन नहीं होता है उसको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोला जाता है। Next question. The reflex action of the toes are indicative of abnormalities in the motor control pathways leading from cerebral cortex is Babinski reflex, Pateral reflex, Achilles reflex, Romberg test. Correct answer option 1, Babinski reflex. Next, Ray's syndrome is associated with biliary colic, use of aspirin with viral illness,
sickle cell crisis, hemolytic transfusion reactions. Correct answer is option second, use of aspirin with viral illness. Next, the classical substances that increases the sensitivity of pain receptors by enhancing the pain provoking effect of bradykinin is nociceptor, endorphins, एंसेफेलिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, प्रोस्टाग्लैंडिन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. When a pulse rate is irregular, it is best to count the radial pulse for a 30-second, radial pulse for a full minute, apical pulse for a full minute, apical pulse for a 30-second. Correct answer is option 3, apical pulse for a full minute. Next question. When assessing physical development of the 5-year-old, you would find it abnormal if he could stake a pile of 6 blocks, needed to go up a stairway one step at a time, cold jump on one foot a few times, cold catch a large rubber ball. Correct answer is option second, needed to go up a stairway one step at a time. Next, to properly stag a pressure ulcer, the skin must be completely dry, the patient must be supine, posture must be removed, natural light must be used. Correct answer होगा option 3, posture must be removed. Properly stage of a pressure ulcer के लिए posture must be removed. Next question देखते हैं. HbA1c indicates post serum glucose levels over previous 6 month period, 2 month period, 1 month period, 3 month period. करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3. जो HbA1c होगी ये 3 मंथ की शुगर का लेवल चेक करने के लिए टेस्ट किया जाता है. नेक्स्ट, द पेशेंट हु हैज एन अपॉइंटमेंट फॉर अ पेप स्मीयर शुड हैव बीन इंस्ट्रक्टेड दैट द प्रोसीजर टेक्स अबाउट 45 minutes, not to dodge or use vaginal medication before the test. Correct. To bring sanitary pads because moderate bleeding may occur, that she will know the test results before leaving the office. Correct answer होगा option second, not to use vaginal medication before the test. Next, progressive thinning and shortening of cervix is defined as effacement, contraction, expulsion, dilation. Correct answer is option 1, effacement. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जीएस से संबंधित क्वेश्चन आ गया है. इरावदी नदी किस देश में बहती है? म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, म्यांमार. नेक्स्ट देखते हैं. वाइड एंगल का लेखक कौन है? शेन वॉर्न, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, शोएब अख्तर. करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, अनिल कुंबले. नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? आसाम, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड, जो चिल्का झील है ये उड़ीसा में स्थित है और वर्तमान में उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ स्वीडन? जिनेवा, स्टॉकहोम, मैड्रिड, कीव. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है. नेक्स्ट, विच कंट्री होस्टेड 2018 फीफा वर्ल्ड कप? 2018 का फीफा वर्ल्ड कप किस देश में हुआ था? जापान, चाइना, यूएई, कतर. करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, यूएई. तो वर्तमान में इससे संबंधित फीफा वर्ल्ड कप से संबंधित जो क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है वो आ सकता है कि फीफा विश्व कप 2022 ये किस देश में हुआ था? तो आपको याद रखना है कि फीफा विश्व कप 2022 ये कतर में हुआ था और इसमें जो विजेता देश था वो था अर्जेंटीना. आगे इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि 2026 का फीफा विश्व कप किस देश में होगा? तो 2026 का जो फीफा विश्व कप होगा ये 3 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं, इसको ज्वाइंटली होस्ट करेंगी. उनका नाम है मैक्सिको, कनाडा और यूएसए. ये 3 कंट्रीज 2026 में फीफा विश्व कप को ज्वाइंटली होस्ट करेंगी. और 2022 का भी मैंने आपको बता दिया है, कतर में हुआ था और कतर में जो विजेता टीम थी वो थी अर्जेंटीना. क्योंकि ये करंट से संबंधित क्वेश्चन है तो आपको 2022 का पूछा जा सकता है. ठीक है,
इसमें ऑप्शन भी दिया है 71 जो कि आपका 2022 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से एक को चुनें जो निम्न समीकरण या फलन के अनुसार अनुरूप संबंध रखता है। देखिए, ये एक मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसको देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। इसमें एक समीकरण दिया गया है, इसके अनुसार ये 4 ऑप्शन है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यदि हम पहला वाला जो इसमें समीकरण है m और ये चिन्ह बना हुआ है, दूसरे में p और एक फिर साइन बना हुआ है और q लिखा है। तो जब ये साइन बना हुआ है इसका मतलब बीच में प्लस लगना है और दोनों का स्क्वायर भी करना है। अब मैं देखता हूं कि किस किस ऑप्शन में ये वाला साइन है। इस टाइप का साइन हमारे पहले ऑप्शन में है और चौथे ऑप्शन में है। तो पहले ऑप्शन के अनुसार 7 का वर्ग किया जाएगा प्लस 9 का स्क्वायर किया जाएगा। तो इसको हम जोड़ेंगे तो इस प्रकार से 130 आएगा। तो यहाँ पे 63 है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। अब हम अपना एक दूसरा विकल्प है जो इस चिन्ह से रिलेटेड है, इस साइन से रिलेटेड है, उसको भी यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर दिया गया है 5। तो यहाँ पर जो 5 दिया गया है, चूंकि इस साइन का मतलब है कि बीच में प्लस लगना है और जो अगल बगल की जो संख्याएं हैं उनमें वर्ग होना है। ठीक है, तो जो साइड बाई साइड की संख्या है उनमें वर्ग होना है और बीच में प्लस लगना है। तो अब क्या करेंगे, 5 का वर्ग किया प्लस 7 का वर्ग किया। 5 का वर्ग 25 होता है और 7 का वर्ग 49 यानी कि 49 होता है। जब 25 और 49 को ऐड करेंगे तो ये 74 आता है और यहाँ पे 74 ऑप्शन में सही दिया गया है। इस प्रकार से आपका ये 4th ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दी गई श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी? 2, 6, 18, 54। देखिए, हमारे पास एक श्रेणी ये दी गई है और हमें पता करना है कि अगली संख्या क्या होगी। तो इसमें क्या करेंगे कि 2 3 6, 2 गुणित 3 ये 6 होता है और 6 गुणित 3 ये 18 होता है। 18 में जब 3 का गुणा किया जाएगा तो 54 आएगा। तो निश्चित बात है कि 54 में 3 का गुणा करने पर जो आता है वो होता है 162। इसलिए ऑप्शन हो जाएगा थर्ड 162। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए डेटा को ध्यान से पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। निम्नलिखित वेन आरेख उन व्यक्तियों की संख्या के बारे में जानकारी दिखाता है जो एक कंपनी XYZ XYX द्वारा नामित विशिष्ट प्रकार के चाय के स्वादों को पसंद करते हैं। तो यहाँ पर एक वेन आरेख दिया गया है। इस वेन आरेख में यहाँ पर कुछ व्यक्ति दिए गए हैं जो अलग अलग ब्रांड की चाय पसंद करते हैं। तो इसमें ये ए वाला वेन आरेख है, ये बी है, ये सी है, ये 18 हो गया, यहाँ पे 24 है और 48 है। यहाँ पर कॉमन में यहाँ पे 4 हैं और यहाँ पर 8 लिखा हुआ है और यहाँ पे 12 लिखा हुआ है और यहाँ पे 18 है। अब हमें जो क्वेश्चन में पूछना गया है, कितने लोग चाय के केवल 2 प्रकार के स्वादों को पसंद करते हैं? तो केवल 2 प्रकार के स्वाद, चूंकि ये 1 प्रकार का, 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, केवल मतलब कि केवल 2 प्रकार के ब्रांड को पीते हैं, हमें ये बताना है ऐसे कितने लोग हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो इसके सॉल्व करने के लिए हम जरा इस वेन आरेख को ध्यान से देखें तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो इसमें 4 नंबर दिया गया है ये तीनों प्रकार की ब्रांड की चाय को पसंद करता है। बाकी ये बीच में जो 12 दिया गया है ये केवल ए और बी की चाय को पसंद कर रहा है, तो 2 प्रकार के 12 में हो गए। और ए और सी के बीच में 8 नंबर जो दिया गया है कि 8 व्यक्ति भी 2 प्रकार की चाय को पसंद कर रहे हैं। और बी वाले वेन आरेख में जो बी और सी में ये 18 दिया गया है, ये भी 2 प्रकार के ब्रांड को पसंद कर रहा है। केवल जो 4 है ये तीनों प्रकार के ब्रांड को पसंद करता है। इस प्रकार से जब हम इसको ऐड करेंगे तो देखेंगे कितना आता है, ये 38 आया। इस प्रकार से ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दिए गए विकल्पों में से तीन एक निश्चित संबंध का पालन करते हैं, उस यंत्र का पता लगाएं जो समूह से संबंधित नहीं है। ऑप्शन 1 है बांसुरी, क्लैरिनेट, सैक्सोफोन, कोंगा। ये चार यंत्र आपको दिए गए हैं। तीन यंत्र एक समान है, चौथा जो यंत्र है वो तीनों से भिन्न है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा यंत्र अलग है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो जो पहला ऑप्शन है बांसुरी, क्लैरिनेट, सैक्सोफोन, कोंगा, तो इसमें से जो बांसुरी है ये मुंह से बजाई जाती है, सैक्सोफोन हो या क्लैरिनेट हो ये मुंह से बजाने वाले यंत्र हैं, जबकि ये कोंगल होता है ये एक ड्रम होता है, ये हैंड ड्रम होता है जिसको इस प्रकार से बनाया जाता है, इसको हाथ से बजाया जाता है। तो ये बजाने के तरीके से यंत्र में अंतर था, इसलिए ऑप्शन 4 यहां पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित आकृति का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और विकल्पों में से उस विकल्प की पहचान करें जिसमें नीचे दी गई आकृति सन्निहित है। देखिए हमको एक ये आकृति दी गई है और ये पता करना है कि ये आकृति इन ऑप्शंस में से किससे मेल खा रही है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे कि एक तो ये ट्रायंगुलर शेप है और उस पर एक सिंपल लाइन है। तो ऑप्शन 1 में हम देखते हैं पहले एक ट्रायंगुलर शेप ये हमें निकल के आ रही है और एक लाइन है। इस प्रकार के ऑप्शन में ट्रायंगुलर शेप तो है लेकिन लाइन नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं है। इस प्रकार के ऑप्शन में कई ट्रायंगल्स तो हैं लेकिन एक सरल रेखा नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं है। इसलिए हमारा ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा क्योंकि ये जो आकृति है इस ऑप्शन 1 में ही सन्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि L प्लस को निरूपित करता है, M माइनस को निरूपित करता है, N क्रॉस को निरूपित करता है और P डिवाइड को निरूपित करता है तो निम्नलिखित व्यंजक का परिणाम क्या होगा। देखिए आपको ये एक व्यंजक दिया गया है 80 N 2 L 180 P 60 M 40। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने 80 लिखा। अब n क्रॉस को निरूपित करता है तो n की जगह पे क्रॉस लिखा, उसके बाद 2 लिखा। जो l निरूपित कर रहा है l को देखेंगे प्लस को निरूपित कर रहा है, फिर उसके बाद 180 आएगा। p की जगह पर हमको डिवाइड लिखना है, डिवाइड लिख दिया 60 आया। m की जगह पर माइनस लिखना है 40 आया। हम लोग जानते हैं एक मैथमेटिक्स में जब ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो बॉड मास का रूल लगाएंगे। बॉड मास मीन्स विनकुलम ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। मीन्स सबसे पहले ब्रैकेट खोलते हैं, फिर ऑफ दिया है उसको करते हैं, फिर डिवाइड को करते हैं और सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में करते हैं। तो इस रूल के हिसाब से विनकुलम ऑफ यहां पर दिया नहीं गया है, समीकरण में डिवाइड दिया गया है। तो सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व किया तो ये 3 बार कट गया। अब क्या करेंगे, 80 इंटू 2 ये बचा है 160 हो जाएगा, प्लस 3 और यहाँ पे माइनस 40 हो गया। तो 163 से 40 माइनस करेंगे तो बचेगा 123, इसलिए ऑप्शन 3 सही होगा। 123 इस आंसर का आंसर होगा 123। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित स्थिति को ध्यान से पढ़ें और स्थिति के लिए उपयुक्त प्रतिक्रिया चुनें। स्थिति, आप मधुमेह और मोटापे से पीड़ित हैं। एक शादी की पार्टी में आपके सहयोगी ने आपको 2 और मिठाइयों की पेशकश की, आप क्या करेंगे। एक सुखद मुस्कान के साथ उस पेशकश को लेने से इनकार करते हैं और कहते हैं मेरा पेट भरा हुआ है। सेकंड ऑप्शन है, जैसा कि आपके सहयोगी ने पेशकश की है आभार के साथ मिठाई खाते हैं, मिठाई देने के लिए उसे डांटते हैं, मिठाई स्वीकार करते हैं और उसके सामने कूड़ेदान में फेंक देते हैं। देखिए यदि आपको डायबिटीज या मधुमेह की प्रॉब्लम है, मोटापे से आप पीड़ित हैं, तो आप जहां पर पार्टी में हैं वहां पर कोई आपको इस प्रकार की मिठाइयां दे रहा है जिससे आपकी शुगर बढ़ जाती है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उसको हमें मना कर देना है। लेकिन मना इस प्रकार से नहीं करना है कि अगले व्यक्ति को बुरा लग जाए या अगले व्यक्ति को जो सेंटीमेंट है वो हर्ट हो जाए। तो इसलिए ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। एक सुखद मुस्कान के साथ उस पेशकश को लेने से इनकार करते हैं और कहते हैं मेरा पेट भरा हुआ है, इसलिए ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। बाकी जो ऑप्शन है वो सही नहीं होंगे क्योंकि मिठाई तो आपको इसमें खाना नहीं है।
मिठाई देने के लिए डांटते हैं, जो डांटना शब्द है ये नेगेटिव वर्ड है और इसलिए ये आंसर सही नहीं होगा। और कूड़ेदान में किसी चीज को स्वीकार करके कूड़ेदान में डायरेक्ट फेंकना भी एक सही स्थिति नहीं है, इसलिए ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पारदर्शी शीट में पैटर्न होते हैं जैसा कि निम्न आकृति में दिखाया गया है। जब एक पारदर्शी शीट बिंदीदार रेखा पर मुड़ी हो तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा। देखिए, एक यहां पर पैटर्न दिया गया है जो क्वेश्चन पैटर्न है और इस शीट में इस प्रकार की एक आकृति है, इस प्रकार की एक आकृति है और ये यहां पर जो शीट दी गई है इस स्थान पर ये बिंदीदार शीट है, बिंदीदार ये एक रेखा है। तो इसको क्या है, जब मोड़ना है, जब ये मुड़ेगी तो इसमें ये वाला जो आकृति है ये इसके अंदर समाहित हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये आकृति बनेगी, इसके अंदर ये गोलाकार भाग जिसमें कि डॉट है इस प्रकार से ये समाहित होगी। तो अब जो आंसर आकृति बनेगी वो इस प्रकार की बनेगी। अब हम देखते हैं कि जो इस प्रकार की आकृति है वो ऑप्शन 3 में है, इसलिए हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन 1 इसलिए सही नहीं है क्योंकि इसमें ये जो वर्ग दिया गया था ये बिल्कुल गायब हो चुका है अंदर से। ऑप्शन 2 भी सही नहीं होगा क्योंकि जो इसमें इस प्रकार से जो रेखाएं अंदर बनी हुई हैं ये रेखाएं आपके गोलाकार भाग में बनी थी, इसलिए भी ऑप्शन सही नहीं होगा। 4th ऑप्शन में केवल इसके अंदर एक खाली गोला बना हुआ है, जो कि खाली एक वृत्त बना हुआ है, जो कि एक सही नहीं है क्योंकि इस वृत्त के अंदर भी रेखाएं हैं, इसलिए हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों में और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और चुनें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का पालन करता है। सभी नींबू आम हैं, सभी संतरे आम हैं, ये कथन है और ये निष्कर्ष है। सभी नींबू संतरे हैं, कुछ संतरे नींबू। देखिए, सबसे पहले हमको इसका जो बेन आरेख है वो हम बनाएंगे। सभी नींबू आम हैं, तो सभी नींबू क्या है, आम है। हमने इसके अंदर ये बना लिया है, ठीक है। ये हो गए नींबू और ये हो गए आम। तो सभी नींबू क्या हो गए, आम है, क्योंकि आम के अंदर नींबू आ गए। अब सभी संतरे आम है, तो इसमें सभी संतरे आम हो रहे हैं, इसका मतलब है इसमें इस प्रकार से जो एक ऑप्शन और बनेगा, ये अलग से बेन आरेख बनेगा। पहले आम का हो गया, नींबू और संतरे, तो आम के सभी संतरे आम हो गए और सभी नींबू आम हो गए। इस प्रकार से अब हम आंसर देखते हैं। सभी नींबू संतरे हैं, तो ये नींबू है और ये संतरा है। सभी नींबू संतरे हैं बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि नींबू बिल्कुल अलग है और संतरा बिल्कुल अलग है, इसलिए ये ऑप्शन निष्कर्ष नहीं निकलता है। दूसरा ऑप्शन में हम देखते हैं कि 1 और 2 दोनों पालन करते हैं, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ना तो सभी नींबू संतरे हैं ना कुछ संतरे नींबू हैं। ये कंडीशन जो है वो मैंने फिर से देखें आप। इस प्रकार से इसका बेन आरेख बनेगा। ये आम हो गए और आम, ये नींबू हो गया और ये संतरा हो गया। तो नींबू अलग है, संतरा अलग है, बट सभी नींबू आम है, ये बिल्कुल इस बेन आरेख से समझ में आ रहा है और सभी संतरा आम है, ये भी समझ में आ रहा है। इसमें इसलिए हम ऑप्शन 4 को सही करेंगे कि इसमें से जो निष्कर्ष है कोई भी निष्कर्ष सही नहीं निकल रहा है क्योंकि न तो एक निष्कर्ष है और ना ही 2 इस कथन का पालन कर रहा है, इसलिए ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी जमीन से 8 मीटर ऊपर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है, तो दीवार के आधार से सीढ़ी के पाद या आधार की दूरी क्या होगी। देखिए, सबसे पहले हम इसमें एक फिगर बनाएंगे इस प्रकार से, तभी आपको समझ में आएगा। ये एक मकान है, मकान में एक खिड़की लगी हुई है, इस खिड़की पर एक सीढ़ी लगाई जाती है। इस सीढ़ी की लंबाई है 10 मीटर और ये जो खिड़की लगी हुई है ये जो जमीन से 8 मीटर ऊंचाई पर लगी हुई है, ठीक है। तो ये वाली जो लंबाई है ये 8 मीटर है। अब यहाँ पे जो पूछा गया है कि दीवार के आधार से, दीवार का आधार ये है, सीढ़ी के आधार और सीढ़ी का आधार ये है, ठीक है। दीवार का आधार ये हो गया और सीढ़ी का आधार ये हो गया यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमको ये वाली दूरी निकालनी है या फाइंड करनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम देखते हैं कि ये एक हमारा समकोण त्रिभुज बन चुका है और ये
कर्ण 10 मीटर का है और आधार ये लंब 8 मीटर का है, हमको आधार निकालना है। तो हम जब जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो इसमें हमें आधार का वर्ग निकालना है। तो आधार का वर्ग बराबर हो जाएगा इसमें से कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो देखेंगे कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, ये अंडर रूट में होगा। तो 100 माइनस 64 अंडर रूट में लेंगे, तो अंडर रूट बचेगा 36। जब ये इसमें से सब्ट्रैक्शन करेंगे 36 आएगा, और 36 ये इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो 6 आता है, इसलिए इस आधार की दूरी 6 मीटर होगी। आंसर 3 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Voluntary rejection of unacceptable thoughts or feeling from conscious awareness is called suppression, symbolization, sublimation, substitution. Correct answer is option 1, suppression.